میں 18 سال کی تھی، لیکن مجھے بڑی عمر کے مرد بہت زیادہ پسند تھے۔ شادی ہوئی تو پتی کے بجائے سسر پر عاشق ہو گئی۔ سسر کی خدمت کرنے کے بہانے ان کو بار بار ہاتھ لگاتی۔ میرے سسر کافی رومانٹک قسم کے انسان تھے۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مچلتی رہتی۔ ایک رات میرا شوہر گھر سے باہر تھا تو میں سسر کے کمرے میں ریڈ کلر کی نائٹی پہن کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا بہو میرے پیر دبا دو، لیکن میں نے لائٹ آف کر دی اور پاؤں دبانے کے بہانے سسر کے ساتھ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر کی رومانٹک باتیں سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا، جیسا کہ ہر لڑکی کا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی شادی کے حوالے سے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ شامیر کمرے میں آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ میں اپنی آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات کے اتنے خواب سجائے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب شامیر کمرے میں آیا تو میں من ہی من مسکرائی تھی۔ دل میں گدگدانے والے خیالات آنے لگے تھے۔ ایک عجیب سی ہلچل مچنے لگی تھی۔ شامیر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ تو جیسے غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا توبہ توبہ، کتنا بڑا ظلم ہے لڑکیوں پر۔ اس کی یہ بات میرے لیے کچھ غیر مناسب تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری بھاری بھرکم عروسی لباس کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا سونیا جاؤ یار، کپڑے بدل کر آؤ، مجھے تو تمہیں دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنا بھاری لباس پہن کر اتنے گھنٹے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے صبر کا امتحان کیوں دیتی ہو؟ اوپر سے یہ اتنی بھاری جویلری، تمہیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کہنے لگا سونیا پلیز، پہلے تم یہ سب اتارو اور ایک عام سے لباس میں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہ سن کر تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں 4 گھنٹے پارلر میں لگا کر صرف اس لیے تو تیار ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، میری رومانٹک انداز میں تعریف کرے، محبت کے جملے بول کر مجھے شرابور کرے۔ لیکن اس کی بیزاری دیکھ کر میں نے نہ جانے کیسے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے شامیر، اس کمرے میں اے سی چل رہا ہے، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی۔ میری بات سن کر شامیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہنے لگا لیکن مجھے تو الجھن ہو رہی ہے نا۔ سونیا جاؤ شاباش اتارو یہ سب کچھ اور ایک سادہ سا لباس پہن کر آؤ۔ میں نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو اتارے گا، میرے ماتھے کی بندیا کو اپنے پیار بھری باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے اتارے، میری تعریف کرتے کرتے وہ میرے سارے زیورات اتارے۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہائے رے میرے مچلتے ارمان! میری تو دوستوں نے بھی ویڈنگ نائٹ کے بارے میں بڑا کچھ مجھے بتا رکھا تھا۔ شوہر شادی کی رات پیار کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ویسا کہتے ہیں، لیکن شامیر تو بالکل ویسا نہ تھا۔ بہرحال میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے ایک سادہ سا لباس نکال کر میں بدلنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں اپنا میک اپ کو دھو رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تو پارلر والی کی جان کھا لی تھی کہ دیکھو بڑا اچھا میک اپ کرنا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے۔ پارلر والی میری بات سن کر ہنس رہی تھی۔ جب تک وہ مجھے تیار کرتی رہی میری تو زبان چلتی رہی کہ میرون کلر کی لپسٹک لگانا وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے، دیکھو جوڑا مت بنانا، چٹیا ہی رہنے دو، اور بالوں پر کلیوں کے گجرے ضرور لگانا۔ اپنی ایک ایک چیز سر سے اتارتے ہوئے مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جب میں بالکل سادگی میں آ کر شامیر کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگا شکر ہے اب کچھ انسان لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر تو میں تپ کر رہ گئی تھی۔ بہرحال میری وہ رات بہت ہی پھیکی گزری تھی، کیونکہ شامیر نے عام مردوں کی طرح میری تعریف ہی نہیں کی تھی، نہ ہی رومانٹک بھرے انداز میں محبت بھرا اظہار کیا تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ شادی کی صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میرے سسر لاؤنج میں وہیں پر بیٹھے تھے۔ میری ساس ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ میرے سسر نے میری ساس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور ان کے کان میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہی میری ساس ہنسنے لگی۔ سسر کہنے لگے تمہارا حسن تو آج بھی مجھ پر جادو جگاتا ہے۔ رات کو تم اتنی پیاری لگ رہی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ شامیر کی نہیں بلکہ میری شادی ہوئی ہے۔ سچ پوچھو دل کی بےقراری اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سنبھالا تھا
कि नहीं बेटा जवान हो गया है। ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई। कहने लगी, बड़े बेशर्म हैं आप। शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फौरन से नज़रें झुका लीं। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का एक हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। मैं अपने सास ससुर के पास आई, उनको सलाम करने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके लिए नाश्ता तैयार करे। शामिर मेरा इकलौता बेटा है, घर में कोई पाबंदी ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा है। मेरी सास कहने लगी, मुलाजिम नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ कि नाश्ता अभी तक बना है या नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, शामिर कहाँ हैं? मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और शामिर तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। सब मेरा कमरा खटखटाकर थक चुके थे। ये कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही रोमांटिक किस्म के हैं। दूसरी बात ये कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे नई नई शादी हुई है, लेकिन इसके बरक्स शामिर ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सजती सवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस एक सरसरी सी नज़र डालकर हटा लेता। खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि शामिर, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? वो बस मुझ पर एक नज़र डालता और कहता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक मोहब्बत वाला इजहार सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी छोटी छोटी बातों से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग बिखर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें खाने से टोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी अम्मा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आईं और कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का लुत्फ़ उठाने लगे, मगर अचानक ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे। कहने लगे, सुमैया, तुम तेज़ बारिश में क्या कर रही हो? ये कहकर खिड़की ज़ोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों अम्मा? कहने लगी, बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र रहती है। कहते हैं बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कह रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, सुमैया तुम्हें कब समझ आएगा? जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर जाते ही तुम्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, फौरन से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था। उन्होंने फौरन सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया। उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुश्क हो जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी। ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था। तुम्हें अपनी ज़रा भी परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल एक बारगी से धड़का था कि काश कभी शामिर भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। उसके अब्बा तो वारी सदके जाते हैं अपनी बीवी पर, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास का।
कहने लगे, सुमैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई थी। नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाई तो गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। फिर मेरे ससुर मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाता हूँ। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ना आ जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरत में पड़ गई थी कि काश ऐसी मोहब्बत शामिर भी मेरे लिए दिखाता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह एज में डिफरेंस था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद शामिर भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकौड़े और चाय बना कर दो। ये कहकर फौरन से वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकौड़े और बाकी चीज़ें टेबल पर सजा दूं। मगर उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। क्या बिगड़ जाता उसका कि मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। मैं गुस्से में किचन में आकर पकौड़े बनाने लगी कि चाय सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर शामिर कमरों से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। शामिर कहने लगा, वाह ज़बरदस्त, ये कहकर खाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन उसका रवैया तो वैसा ही था। एक बार शामिर जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहीं बाहर लेकर जाएगा। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, शामिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं यार, आज नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ कहीं चली जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वो कहने लगा, देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस शख्स को ज़रा भी मेरी परवाह न थी। हालांकि वो जानता था मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं है कि टप टप आंसू बहाना शुरू कर देती हो। तो मैं समझा तो रहा हूँ, दोस्तों के साथ मेरी पहले से कमिटमेंट थी, तो मैं ले जाऊंगा 2-4 दिन में। ये कहकर वो चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों के साथ न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश मेरी शादी भी बड़ी उम्र के शख्स से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत तो होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर मेरा आइडियल बनने लगे थे, क्योंकि वो वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने शौहर से चाहती थी। हालांकि कुछ दिन बाद शामिर मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफर था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों की बातें कर रहा था, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की, ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का ये हाल था कि मेरा भी वो लिहाज नहीं करते थे, मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो कभी कम होने का नाम ही नहीं लेता सुमैया। जब तक तुम्हारा हुस्न जोबन पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई न था, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते थे, मेरे दिल में बेख्तियारियां बढ़ने लगती थीं। ऐसी ही बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसा मेरा ससुर मेरी सास से करता है।
میں نے سوچا کہ شاید میں شامیر سے کترانا شروع کر دوں تو شاید اسے میری قدر ہو جائے گی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہوں، اس لیے اسے میری قدر نہیں ہے۔ ایک بار شامیر مجھ سے کہنے لگا، جاؤ چلو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں تمہیں کہیں گھما کر لاتا ہوں، کافی دنوں سے تم کہیں پر نہیں گئی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ مجھے لگا شامیر پوچھے گا کیوں نہیں جانا، وجہ بتاؤ، تو میں اسے نخرے دکھاؤں گی، اسے کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ اتنی بے مروت طریقے سے رہتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ وہ شاید مجھے منائے گا، مگر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم خود چلی جانا۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میری ساس سسر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ سسر میری ساس کے بالوں میں کلیوں کے گجرے لگا رہے تھے، کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جس پر میری ساس مسکرا رہی تھیں، بار بار میرے سسر کی چھیڑ چھاڑ پر ان کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھیں۔ کیا آپ کبھی نہیں سدھریں گے؟ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھیں۔ اور وہ انہیں کہنے لگے، دل جوان ہونا چاہیے، عمر کا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار میری ساس میرے سسر سے کہنے لگی کہ وہ اپنی بہن سے ملنے جانا چاہتی ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس بار بھی ان کے گھر نہیں گئیں۔ مگر سسر کہنے لگے کہ تم وہاں چلی گئیں تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو تمہارے بنا دیوداس بن جاؤں گا، میں تمہاری 2 گھنٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری شادی کسی ایسے ہی شخص سے ہو جاتی جیسے کہ میرے سسر ہیں۔ میں تو خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتی۔ ایک میرا شوہر ہے، اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کہتا ہے جاؤ اپنی دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کرو، اپنی لائف انجوائے کرو، خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک میرا سسر ہے جسے میری ساس کے بغیر 2 گھنٹے رہنا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے سسر سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اندر ہی اندر کہیں مجھے یہ خواہش ہونے لگی کہ وہ میری ساس کو چھوڑ کر میری تعریف کریں، جیسی محبت کا اظہار میری ساس سے کرتے ہیں ویسے ہی لفظ میرے بھی کان سنا کریں۔ میں نے اپنے سسر کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیا، ان کا ہر کام میں کرنے لگی، حالانکہ پہلے یہ سب کام میری ساس کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھے، میں نے فٹافٹ سے چائے بنائی اور اپنے سسر کے سامنے رکھ دی۔ مجھے چائے کے کپ کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے، کہنے لگے سمیہ کدھر ہے؟ میں نے کہا اب اماں کو چھٹی بھی دے دیں، کب سے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، اب آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چائے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا میں بھی بہت اچھی چائے بناتی ہوں، آپ پی کر تو دیکھیں۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کہنے لگے، واہ تمہارے ہاتھ میں بھی تمہاری ساس جیسا جادو ہے، بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے۔ اگر یہ چائے تمہارے ساس کے ہاتھوں سے بنی ہوتی تو میں اس کے ہاتھوں کو ضرور چوم لیتا۔ یہ کہہ کر وہ چائے کا کپ ہونٹوں پر لگانے لگے اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں آج تک میرے شوہر نے پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر نہیں لگایا تھا، کبھی میری تعریف بھی نہیں کی تھی۔ میری ساس جب کمرے سے باہر آئی اور سسر کو چائے پیتے دیکھا تو کہنے لگی، شکر ہے آج آپ نے اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے پی لی، ورنہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ باہر جاؤں گی آپ کو چائے بنا کر دوں گی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھکی تھکی سی ہیں۔ سسر کہنے لگے اب یہ مت سمجھنا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، آج تو بہو بنا کر لے آئی ہے۔ میں نے چائے پی لی، لیکن کل سے چائے تم ہی بنا کر دو گی۔ ارے جو مزہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں کہاں۔ اب جب بھی میرے سسر گھر آتے میں بھاگی دوڑی ان کے پاس چلی جاتی، ان کے ہاتھ سے سامان پکڑ لیتی، کیونکہ گھر کا راشن وہی لے کر آتے تھے۔ میں ان کے ہاتھ سے شوپر پکڑتی، فٹافٹ شربت کا گلاس بنا کر انہیں پیش کر دیتی۔ جب وہ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر پی لیتے، لیکن فوراً سے سمیہ سمیہ کہنے لگتے، فوراً سے میری ساس کو بلاتے، کہتے تم نے کیا بچی کے سر پر ابھی سے ذمہ داری ڈال دی؟ ارے بھائی کتنی بار کہا ہے جب میں باہر سے آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا چہرہ مجھے دکھایا کرو، تم ہو کہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہو۔ میری ساس کو آج کل شام ہوتے ہی ہلکا ہلکا بخار ہو جاتا تھا، عمر کا تقاضا بھی تھا۔ میں نے کہا ابا آپ کیوں اماں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں ہوں نا، آپ اماں کو آرام کرنے دیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کرے آرام، ویسے بھی یہ کرتی کیا ہے، سارا گھر تم نے سنبھال لیا ہے، بس اسے مجھے ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہیں۔
मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उस पर मेरे ससुर की शोखियां उरूज पर जाने लगती। वो ऐसे ऐसे जुमले कहने लगते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश भी जागने लगती कि कोई मुझसे भी ऐसा ही इजहार करे, ऐसी मोहब्बत करे। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनसे तस्कीन हासिल करने की कोशिश करती। यही सोचती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, लेकिन शायद मैं नहीं हूँ। मेरी जिंदगी तो रूखी फीकी ही गुजर रही थी, क्योंकि शामिर बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। उसे बीवी बस कुछ घंटे के लिए ही अच्छी लगती है, फिर तो वो यूं होता है जैसे उसका और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहता है, तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। क्या ये होती है शादी? मैं तो उस दिन रोने ही लग गई थी। अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि जब मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान थी कि ये कौन है जो हिचकियों से रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, फरीदा मैं क्या करूं? मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूं कि कमाल भाई का फराज से झगड़ा है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर नहीं आने देंगे। हालांकि फराज बहुत अच्छे हैं, उन्हें एतराज नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं, बस वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि सुमैया मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 4 घंटे के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हारे लिए वो अपनी बहन से बात कर करके फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने फोन से बात टाल कर फोन रख दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अब्बा कहाँ हैं? कहने लगी, अपने कमरे में होंगे। मैंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? वो कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है। मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उसे जाकर मिल लूं, लेकिन उसके मियाँ की तुम्हारे ससुर से किसी बात पर झगड़ा नाराजगी है, इसलिए उसका शौहर तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो ऐतराज नहीं होगा, लेकिन फराज को तुम जानती हो, उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको अब्बा जैसे शौहर मिले हैं। वो कहने लगी, खुश नसीब हूँ मैं? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, खुश नसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी रश्क भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि मेरा शामिर अपने अब्बा जैसा नहीं है। ये सुनकर मैं हैरत से अपनी सास की जानिब देखने लगी। वो कहने लगी कि देखो ना, तुम कितनी आज़ादी से अपने मायके जाती हो, 2-2 दिन रहकर आती हो, अपनी बहनों से मिलकर आती हो, ड्राइविंग करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट जाती हो, तुम्हें आने जाने की आज़ादी है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है, मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सज़ा भुगत रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेना दूभर हो जाता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत कुछ ऐसी ही है, दम घोंटने वाली, पाबंदियों से भरी हुई। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है, औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है, मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन फराज मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहाँ जाना है मैं फराज के साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती मैंने ये जिंदगी किस अज़ियत से गुजारी है। ये मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बांध कर रख लो। कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकती। फराज कहते हैं तुम ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं। अपनी मर्जी से बारिश में नहा भी नहीं सकती क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से मैं सांस भी नहीं ले सकती। क्या ये मोहब्बत होती है? शादीशुदा जिंदगी में अपने सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस जिंदगी की ख्वाहिश मैं कर रही थी वो तो बहुत अजियतनाक थी। शुक्र है कि शामिर ऐसा नहीं था। मुझे अब अपने शौहर की कदर हुई थी। वो कहता था कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है।
ٹھیک ہے ہم میاں بیوی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہر وقت مسلط رہیں۔ شاید میں نے اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس کی محبت کے چھوٹے چھوٹے جملے مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے تھے۔ میں تو شاید اپنے سسر کی اوپری محبت سن کر ویسی ہی محبت چاہنے لگی تھی، لیکن اب میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے خدا نے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی رکھا ہے۔ ویسے آپ کو کس طرح کی محبت پسند ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ میں صرف 18 سال کی تھی جب میری شادی میرے پتی ہمیش کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہمیش کی شکل زیادہ اچھی تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی میری طرح جوان تھا۔ اس کے گھر میں اس کا ایک بڑا بھائی اور اس کی پتنی رہتے تھے۔ ان لوگوں کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور میرا جیٹھ، جس کا نام مہیش تھا، وہ میرے پتی سے 5 سال بڑا تھا۔ اس کی پتنی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میں خوبصورتی میں اس سے بھی آگے تھی۔ میری سہاگ رات تھی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میری جٹھانی میرے پاس آئی۔ میں نے اپنی جٹھانی کو نظر بھر کے دیکھا، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے ساڑی کو بہت ہی نیچے باندھ رکھا تھا اور کمر مٹکا مٹکا کر چل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ گرو ہے، اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم دنیا کی سب سے زیادہ بھاگیشالی لڑکی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ ایسا بھی کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اس خاندان میں مرد اپنی عورتوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو بھی یہاں پر بہت زیادہ خوش رہے گی۔ اس بات پر میں ہنس پڑی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں مذاق نہیں کر رہی، اس خاندان کے مردوں کو عورتوں سے بہت زیادہ محبت ہے، بڑے چاؤ سے رکھتے ہیں عورتوں کو، لیکن ہاں، تجھے بھی سب کچھ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ دیور جی کی کوئی بات نہ ٹالنا، اگر تو ان کو خوش رکھے گی تو وہ بھی تجھے خوش رکھے گا۔ بس میں تجھے یہ بتا رہی ہوں کہ دیور جی کی دکھتی رگ وہی ہے جو ہر مرد کی ہوتی ہے، اور وہی ہے جو میرے مرد کی بھی ہے۔ میں نے کہا کہ اس لیے تم ہمیشہ اتنی تیار ہو کر رہتی ہو؟ تو کہنے لگی اور کیا، اگر عورت تیار ہونا چھوڑ دے تو اس کے مرد کو ایک پل نہیں لگتا دوسری عورت کے پیچھے جانے کے لیے۔ میں نے تجھے کہا نا، ان مردوں کو باندھ کے رکھنا بہت ضروری ہے، اور باندھ کے رکھنے کے لیے عورت کے پاس ہوتا ہی کیا ہے سوائے اس کی خوبصورتی اور سندرتا کے۔ بس تو میری یہ بات اپنے پلو سے باندھ لینا۔ میں نے سوچا کہ پہلی رات ہی تجھے یہ بات بتا دوں، کیونکہ آج سے ہی یہ سب کچھ شروع ہونے والا ہے۔ آج اگر تو جیت گئی تو ہمیشہ جیت تیری ہی ہوگی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ عورت کی جیت مرد کے سامنے ہار جانے میں ہوتی ہے۔ اس لیے آج تم نے ایسے ہارنا ہے کہ تم جیت جاؤ۔ میری جٹھانی سے مجھے اس طرح کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ وہ تو بہت کھل کر باتیں کر رہی تھی، پر جو بھی کہہ رہی تھی صحیح کہہ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ تھا۔ میری جٹھانی کو ابھی تک کوئی سنتان نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے پتی کے لیے ہی تیار ہوتی اور اس کی ہر بات مانتی تھی، لیکن مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ میں تو چاہتی تھی کہ جلدی جلدی ایک ننھا منا سا بالک میری گود میں آ جائے، پر میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ میری جٹھانی نے مجھ سے کہا کہ یہ لے دودھ کا گلاس، اپنے مرد کو پلا دینا، اور ہنستی ہنستی وہاں سے چلی گئی۔ ابھی تو وہ بہت ہنس رہی تھی، پر میں ابھی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اسی عورت کے ساتھ مجھے اس گھر میں رہنا ہے اور مل بانٹ کے سارے کام کرنے ہیں۔ پر پھر سوچا کہ ساس سے تو اچھی ہی ہے۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو کچھ ڈرا ڈرا سا لگ رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کو زندگی میں کسی لڑکی نے گھاس نہیں ڈالی ہوگی۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، بس میں ہی تھی۔ چلو یہ بھی اچھی بات تھی، ہم لوگ بہت خوش تھے۔ صبح ہوئی تو میں نہا دھو کر باہر آئی۔ میری جٹھانی نے کہا کہ بہت سندر لگ رہی ہو، بالکل کسی پھول کی طرح کھل گئی ہو۔ آؤ میں تمہیں اس گھر کی رسوئی دکھا دیتی ہوں، آخر تمہارا زیادہ تر سمے یہیں گزرنے والا ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور میں سوچنے لگی کہ یہ عورت بڑی چالاک ہے۔ جب میں رسوئی کی طرف جا رہی تھی، میرے جیٹھ جی باہر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ایسا لگا کہ اخبار کی اور سے مجھے ہی دیکھ رہے ہوں، اور ایک ہی پل میں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھ کر
ये सोच रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। शादी के कुछ दिन बाद तक तो दुल्हन खूबसूरत ही लगती है। नई नई साड़ियाँ पहनती है, सूट पहनती है, मांग में सिंदूर होता है, हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, कंगन होते हैं। उसके बाद में उसका रूप का मोह होने लगता है। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जेठ मुझे ही देखता रहता है। हर वक्त उसकी नज़र मुझ पर होती थी। मेरी जेठानी ने कहा कि ये लो आटा और आटा गूंथ लो। मैं परात जमीन पर रखकर बैठ गई और आटा गूंदने लगी। अचानक मैंने देखा कि मेरा जेठ बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे टीवी पर कोई चैनल चल रहा हो जिस पर उसकी मन पसंदीदा फिल्म चल रही है। बस हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ने की देरी थी। मैंने अपना पल्लू ठीक किया और ये सब मेरी जेठानी ने देखा तो उसने मुझे कहा कि तुम अंदर जाकर भाजी बना लो, मैं खुद ही आटे को गूंद लूंगी। वो ज़रा गुस्से से बोली थी। मैं उठकर किचन में चली गई। मैंने कहा कि ठीक है, और जैसे ही वो आटा गूंदने के लिए बैठी, उसका पति सामने से उठकर चला गया, जैसे कि उसकी मनपसंद का चैनल किसी ने बदल दिया हो। अगर मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया, तो फिर उसकी पत्नी ने भी किया होगा। यही वजह थी कि रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। उसने कहा कि हाँ, भाभी ज़रा तेज़ मिजाज की हैं, इसीलिए झगड़ा होता रहता है। भैया उसके साथ खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी निभा रहे हैं, क्योंकि भाभी के घर वाले बहुत अमीर हैं। उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। मेरी नौकरी भी उनकी वजह से ही लगी है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, उन्होंने ही उतारा था। ये जो घर में तुम्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये भी उन्हीं की हैं। और मेरी नौकरी तो अभी लगी है। अभी तक मैं भाभी से पैसे लेता था। वो बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने कहा, और आपके भाई, वो कैसे हैं? उसने कहा कि भैया अच्छे हैं, बस थोड़े से सुस्त हैं। वही बात है, जिसकी बीवी अमीर हो और उसके घर वाले मदद करते हों, तो फिर आदमी सुस्त हो जाता है। बस घर में पड़े रहते हैं, कभी काम पर चले गए, कभी नहीं गए। लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। देख लेना, कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा कि घर तो आपका अच्छा है, मुझे गाड़ी चाहिए। उसने कहा कि गाड़ी तो बहुत महंगी होगी और फिर उसका खर्चा भी होगा। मैंने कहा कि मुझे तो गाड़ी ही चाहिए। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम अपनी पत्नी के लिए एक गाड़ी लेंगे, जिसमें बैठकर खूब सैर सपाटा किया करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। मेरे पति ने मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरे लिए गाड़ी ज़रूर लेगा, और मैं भी बहुत खुश हो गई थी। मेरा पति जब घर से बाहर चला जाता था, तो घर में मैं, मेरी जेठानी और जेठ जी होते थे। जैसे मेरे पति ने बताया, वो कभी काम पर जाते, कभी नहीं जाते, पूरा दिन घर में पड़े रहते थे, इधर उधर फिरते रहते थे और आते जाते मुझे ही देखते रहते थे। एक दिन तो मुझे गुस्सा ही आ गया और मैंने उनको सीधी सीधी बातें कह दी, क्योंकि मैं भी कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे मुंह में जो आता था मैं बोल देती थी। मैंने कहा कि जेठ जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो तुरंत लपक के मेरे पास आ गए और कहने लगे कि एक क्यों, दो बातें करो। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि तुम हमारी तरफ कब देखती हो, पर तुम्हें तो अपने पति से फुर्सत ही नहीं है। हम लोग घर के आंगन में खड़े थे जब ये बात कर रहे थे। मेरी जेठानी शायद छत पर कपड़े सुखा रही थी और ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। वो सुन तो नहीं पा रही थी कि हम क्या बोल रहे हैं, पर देख ज़रूर रही थी। मैंने कहा कि आप छुप छुप कर मुझे क्यों देखते रहते हैं? तो कहने लगे कि अरे हम तुम्हें कब देखते हैं। मैंने कहा कि आप देखते हैं, मैंने खुद देखा है। ये तो बहुत अजीब बात है। आपको मुझसे कोई बात करनी है तो सीधा सीधा बोल दीजिए, इस तरह देखने का क्या मतलब है? इस बात पर वो हंसने लगे और फिर कहने लगे कि जब कोई अच्छी चीज़ हो तो उसे हर कोई देखता है ना? तुम हमें अच्छी लगती हो। जब हमारी पत्नी की शादी हुई थी और वो हमारे घर में थी, तो वो भी शुरू शुरू में बहुत खूबसूरत लगती थी। मुझे पता था कि मेरा जेठ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी तैयार होकर ही रहती थी। फिर वो ऐसे कैसे कह सकता था कि अब उसमें वो बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी नज़रों को ज़रा संभाल के रखें और मुझे भी कम देखा करें।
آپ کی अपनी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, उस पर ध्यान दिया करें। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और मेरी जेठानी छत से नीचे आ गई। थोड़ी देर वो अपने पति से कोई बात करने लगी और उसके बाद सीधी रसोई में गई और मुझसे कहने लगी कि मेरे पति से तुम क्या बात कर रही थी। मैंने कहा कि बस ऐसी ही कोई बात कर रही थी, और अगर बात कर भी ली तो क्या हो गया, तुम्हारा पति है तो मेरा भी जेठ लगता है। एक घर में रहते हैं, बात नहीं कर सकते क्या? उसने कहा कि मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। एक घर में रहते हैं तो मजबूरी में रहते हैं। इस घर को बनाने वाली मैं हूँ, मेरे माता पिता की पाई पाई लगी है इस घर पर, वरना इन दोनों भाइयों के पास था ही क्या। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो मुझे मेरे पति ने बताई है। उसने कहा कि बस तुम मेरे पति से दूर रहो और ये ना समझना कि मैं तुम्हें ये बात तुम्हारी नफरत में कह रही हूँ, तुम्हारे फायदे की बात है। मेरे पति से दूर रहना ही तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शायद वो मेरे फायदे की ही बात कह रही थी, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस घर में मेरे मुकाबले में तो यही थी। इसका पल्ला भारी था, ये घर इसके माँ बाप ने बनाया था और ये बड़ी भी थी, तो मुझे इसका हुक्म मानना पड़ता था। ये मुझ पर बार बार हुक्म भी चलाती थी, आसान काम खुद कर लेती थी और मुश्किल काम मेरे लिए छोड़ देती थी। मुझे नहीं लगता था कि मेरा इसके साथ इस घर में गुजारा होने वाला था। मैंने सोच लिया था कि या तो ये इस घर से जाएगी या फिर मैं अपने पति को लेकर अलग हो जाऊंगी। लेकिन मेरा पति कहता था कि साथ रहने में ही फायदा है, अलग हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके दिमाग में ये बात पता नहीं किसने डाली थी, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, क्योंकि इस तरह से तो नहीं होने वाला था। जब मेरा पति काम पर चला जाता तो घर में मेरा जेठ ही होता था। एक दिन मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं क्यों आपके साथ चलूँ? आपके घर वालों से मेरा क्या रिश्ता है? मुझे नहीं जाना। वैसे भी जब से शादी हुई है मैं तैयार हो होकर थक गई हूँ। आज मैं आराम से नहाऊंगी और बिना मेकअप के अपने घर में आराम करूंगी। मुझे पता था कि मेरी जेठानी मुझे अपने मायके लेकर क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि घर में उसका पति और मैं अकेले होते हैं। जब मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो उसने जाकर अपने पति से कहा कि सुनो जी, तुम ही मेरे साथ चलो, घर में क्या करोगे? वो लोग तुम्हारे भी संबंधी हैं, कभी उनसे भी व्यवहार रख लिया करो, कभी मिल लिया करो। उसने कहा कि मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, आज मेरी छुट्टी है। उसने कहा कि वो छुट्टी तो उन लोगों की होती है जो काम धंधे पर जाते हैं, आपकी तो रोज ही छुट्टी होती है। उसने कहा कि हाँ, बस रोज छुट्टी होती है ना मेरी, तो मुझे आराम करने दे। तू मेरे आराम से क्यों जलती है? जा अपने माँ बाप के घर जा। मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये लोग तो ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने ऐसे बने हुए थे कि जैसे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मेरी शादी पर एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी मोहब्बत बस इन्हीं को है। और मैं भी बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा था कि काश मेरा पति भी मुझसे ऐसे ही प्यार करे जैसे मेरा जेठ और मेरी जेठानी से करता है। लेकिन मेरे पति को काम से फुर्सत ही कहाँ थी। सुबह जाता था तो रात के अंधेरे में घर आता था। रात को कहता था कि मैं बहुत थक गया हूँ और सो जाता था। जब मैंने कहा कि अभी हमारी शादी हुई है तो मुझे हनीमून पर ले जाओ, तो उसने सीधा कह दिया कि हनीमून पर जाकर क्या करना है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पैसे भी लगेंगे और फायदा क्या है? मैंने कहा कि हनीमून पर लोग फायदे के लिए नहीं जाते, हनीमून तो जरूरी होता है, और हमारे घर में कौन से सास ससुर हैं जो हमें रोकेंगे? हमें तो आज़ादी है, हम तो जा सकते हैं। सोचा तो यही था कि इस घर में मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी, क्योंकि ना मेरी सास है ना ससुर जी हैं। लेकिन मेरे पति और मेरी जेठानी ने ये कसर पूरी कर दी थी, क्योंकि मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं जाता था। वो कहता था कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, और वक्त होता तो कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इधर मेरी जेठानी भी मुझ पर हुक्म चलाती थी। मैं अपने पति की मोहब्बत के लिए तरस कर रह गई थी। कितनी अजीब बात थी, कोई दूर से देखे तो यही सोचे कि उनकी तो अभी शादी हुई है, इनको तो एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं होगी। और यहाँ पर यह हालत थी कि मेरा पति इस मामले में लापरवाह था।
मेरी माँ कहा करती थी कि मर्द दो तरह के होते हैं, एक वो मर्द जिनको अपनी पत्नी से फुर्सत नहीं मिलती और वो हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, उसके करीब आने के लिए मरते हैं, और एक ऐसे मर्द होते हैं जो सब कुछ बहुत नाप तोल के करते हैं, उनको अपने काम से ज़्यादा प्रेम होता है और वो काम करना चाहते हैं, पत्नी को भी रखते हैं लेकिन उसे अपने सर पर सवार नहीं करते। मुझे लगता था कि मेरा पति दूसरा वाला था, लेकिन ऐसा पति के साथ मेरी जिंदगी अच्छी कैसे गुजरती। मैं तो अभी जवान थी, मुझे तो मेरे पति का साथ चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि ये वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमने अभी मेहनत नहीं की तो हम बाद में पछताएंगे। और पति का प्रेम ये नहीं होता कि वो बस अपनी पत्नी के पास बैठे उसे प्यार करता रहे। अच्छा पति वो है जो उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल करे, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो अभी पैसा कमाना ही ज़रूरी है। पर धीरे धीरे मेरे जज्बात बदलने लगे और फिर मेरे पास एक ऑप्शन भी था कि मेरा जेठ ऐसा इंसान था कि अगर मैं उसे एक इशारा करती तो वो मेरे कदमों में बैठ जाता। कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ कि मैं घर में अकेली थी और मेरा जेठ भी। उसने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा कि पानी पिला दो। मैं पानी का गिलास लेकर गई। जब मैंने गिलास उसे पकड़ाया तो उसने मेरी बाजू ही पकड़ ली। करना तो मुझे ये चाहिए था कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती और कहती कि ये क्या हरकत है, तुमने मेरी बाजू क्यों पकड़ी है, लेकिन मैंने भी अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शाम हुई तो मेरी जेठानी आई। वो कभी भी अपने मायके जाती तो रात को नहीं रुकती थी, इसलिए शाम में उसने आना ही था। कहने लगी कि पूरा दिन क्या करती रही हो तुम। मैंने कहा कि खाना बना दिया था और उसके बाद मैं सो गई थी। कहने लगी कि मेरा पति क्या कर रहा था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में आकर सो गई थी। वो मुझसे पूरी रिपोर्ट मांग रही थी। जाहिर है उसे भी अपने पति के बारे में पता था, लेकिन मैं मन ही मन हंस रही थी कि अब तुम रिपोर्ट मांगो या रिपोर्ट कार्ड, जो होना था वो हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब वो दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। उनके झगड़े की वजह से हम लोग आधी आधी रात तक जागते रहते थे, क्योंकि इतने शोर में नींद नहीं आती थी। माना कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप किसी जवान लड़की से शादी करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी भी कोई ज़रूरत है, और फिर शादी करता ही क्यों है आदमी। मेरे पति को ये सब कुछ नहीं पता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इस रिश्ते का चोर दरवाज़ा तलाश कर लिया था और मैं वहाँ चली भी गई थी। एक दिन मेरे पति का मूड बहुत अच्छा था। कहने लगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मेरा पहला प्रोजेक्ट वो ख़त्म हो गया है और अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब मैं तुम्हें सारा टाइम दूंगा और हम दोनों अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। वो बोल रहा था और मुझे उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं तो जेठ जी के सपनों में खोई हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही? तो मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। उसने कहा, क्या यार, आज तुम सोने की बात करती हो, अब मुझे कोई काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। आपकी जेठानी को अपने पति से झगड़ा करने के अलावा और कोई काम नहीं है, सारे घर का काम मुझे करना पड़ता है। मेरे पति ने कहा, काम को क्यों याद कर रही हो, तुम तो जवान हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी, फिर उसके बाद जो मैं कहूँ। वो बोल रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही है, मेरी नींद उड़ जाएगी चाय पीने से, मुझे सोने दो। मैं तो अपने पति से बदतमीजी करने लगी और सो गई। उसको भी समझ आ गई थी कि शायद मैं नाराज़ हूँ, लेकिन ये नाराज़गी नहीं थी, अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरा पति और मेरी जेठानी नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी जेठानी ने मेरे पति के लिए नाश्ता बनाया था। वो मुझे देखकर किचन में चली गई तो मेरे पति ने कहा, मेरे लिए नाश्ता बनाने का काम तुम्हारा है, भाभी जी का नहीं। मैंने कहा, उसने बना दिया तो क्या हुआ, मैं भी तो इतने सारे घर के काम करती हूँ। मेरे पति ने कहा, घर तुम्हारा ही है, लेकिन आजकल तुम्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है। अब मेरा पति मेरे पीछे पीछे फिरता था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और शायद उसे ये बात जल्दी समझ आ गई थी।
एक रात मैं सो रही थी, जब मैंने करवट बदली तो मेरी आंख खुल गई और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति मुझे देख रहा था। मैं तो डर ही गई थी। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ये बताना चाहता था कि मैं जो इतने दिन से तुमसे दूर था, तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। मैंने कहा ये तो ठीक ठाक बात है, चलो सो जाओ, कल बात करेंगे। मैं मुंह दूसरी तरफ करके सो गई और इस बात पर वो सोचने लगी कि ये मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा था। कुछ दिन से मेरे पति को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, मेरे पीछे पीछे फिर रहा था, लेकिन फिर मुझे पता था कि इसका यही काम है। इसको मेरे से ज्यादा, इस रिश्ते से ज्यादा पैसे कमाने की पड़ी है, तो बस फिर यहाँ ही लगा रहे। पर एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा पति जब घर आया तो मेरी जेठानी उसके साथ थी। वो सुबह से घर पर नहीं थी। मुझे लगा कि अपने मायके होगी, लेकिन वापस उसके साथ आई तो मैंने कहा था, मेरे पति के साथ कहाँ गई थी। कहने लगी, मैं तो उसके साथ कहीं भी नहीं गई थी, मुझे वापस आना था और ये उधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे अपने साथ लेता जा। मैंने कहा अच्छा। वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे पति के साथ आ गई तो तुम्हें ये बात बुरी लगी क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछा था। उसने कहा हाँ, ऐसी बात को कभी दिल पर लेना भी नहीं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारा पति सिर्फ 17 साल का था। मैंने उसके साथ बहुत समय गुजारा है, बहुत उसके कपड़े इस्त्री किए हैं, खाना बना कर दिया है, उसे कॉलेज भेजा है। मेरे लिए वो मेरे छोटे भाई जैसा है, जैसे मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। मेरी जेठानी ने ये बात क्या कही। मैं खड़े होकर पानी पी रही थी, पानी मेरे गले में ही फंसकर रह गया। उसने कहा अरे क्या हो गया, ठीक तो हो तुम। मैंने कहा कुछ नहीं। जब उसने कहा कि मेरा पति तुम्हारे बड़े भाई जैसा है, तो इस बात पर मैं चौंक गई थी, क्योंकि उसके पति के साथ मेरे संबंध बहुत आगे निकल चुके थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसके दिल में कोई बात है, पर वो मुझे पता था कि हम दोनों के बारे में उसे कभी पता नहीं चल सकता था। हम इस बारे में बहुत सतर्क रहते थे और उसके पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते थे। वैसे भी जो इंसान इस तरह का काम करता है, वो इस बारे में बहुत सोच समझ के ही सब कुछ करता है। मेरी जेठानी को शक तो हो सकता था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल सकता था और मुझे नहीं लगता था कि उसे शक हुआ था। वैसे ही कह रही थी, एक रात मेरा पति घर नहीं आया। मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था जो वो घर ना आया हो। और उसी रात मेरी जेठानी भी अपने मायके रुक गई थी। इस बात पर हम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि आज हमें खुलकर मौका मिल गया था। मेरा जेठ कहने लगा कि वो कभी अपने मायके रात को नहीं रुकती, आज क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ही उसे उसकी पत्नी का फ़ोन आया। उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं रुक गई हूँ। तो इस बात पर वो हंसने लगा और कहने लगा कि आज तो मम्मी जी ने हमारी पार्टी करवा दी। हम दोनों बहुत खुश हो गए। ये दिन भी इसी तरह से गुजर गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तू अपने पति के साथ खुश तो है। तो मैंने कहा कि हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि कल वो तेरे पापा जी से मिले थे, तो पापा जी कह रहे थे कि वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने सोचा कि तूने कहीं उनके साथ कोई झगड़ा तो नहीं किया। मैंने माँ को कहा, झगड़ा करने का वक्त कहाँ है आपके दामाद के पास, हर टाइम तो अपने काम में लगे रहते हैं। उसने कहा कि काम में लगा रहता है तो अच्छी बात है, तूने अपने जेठ को नहीं देखा, हर टाइम घर पर पड़ा रहता है, बीवी से झगड़ा करता रहता है। जब उन्होंने मेरे जेठ के बारे में इस तरह की बातें की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अम्मा क्यों उसके पीछे पड़ी हो, छोड़ दो उसको। वो कहने लगी कि अपने पति की तो बुराइयां कर रही है और जेठ के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं सुन पाती, कैसी हरकतें कर रही है। मैंने कहा कि आप नहीं समझोगी, सुबह से शाम हो गई, मैंने अपने पति को नहीं देखा था, लेकिन मुझे देखने का कोई शौक भी नहीं था। फिर उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है, तुम घर के सबसे बड़े कमरे में चली जाओ। मुझे अपने पति से वैसे तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब सरप्राइज़ का सुना तो मैं खुश हो गई कि चलो कुछ मिल तो जाएगा। घर का सबसे बड़ा कमरा सामने ही था। वाकई बहुत बड़ा कमरा था, इसलिए हम उसे घर का बड़ा कमरा कहते थे। जब मैं उस कमरे में गई तो अंदर दाखिल होने के 2 फुट बाद
एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था और सामने मेरा जेठ खड़ा था। मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबके सामने तो मैं उससे इसी तरह से बात करती थी। उसने कहा तुम्हारे पति ने कहा है कि कोई सरप्राइज है और मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कहा हाँ, मुझे भी यही कहा है। फिर मैंने सोचा कि उसने कार ली होगी और मेरे जेठ जी को भी कार का बहुत शौक था, इसलिए उसको भी बुलाया होगा। इस बात पर मैं हंसने लगी और मैंने अपने जेठ जी को धीरे से कहा कि गाड़ी है इस पर्दे के पीछे। उसने कहा कि अच्छा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पति के पास? मैंने कहा हाँ, उसके पास तो पैसे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। उसने कहा ऐसे नहीं करो, कहीं कोई सुन न ले। हम दोनों हंसने लगे और थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे पति की आवाज़ पर्दे के पीछे से आई। उसने कहा कि पर्दा हटाकर इधर आ जाओ। मेरी जान, मैंने अपने जेठ से कहा कि चलो मिलकर पर्दा हटाते हैं। हमने पर्दा हटाया तो सामने जो हो रहा था वो देखकर हम लोग हैरान हो गए। मेरे जेठ को तो गुस्सा आ गया, वो गुस्से से लाल पीला हो गया और मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि पर्दे के पीछे एक सोफा पड़ा था, आसपास फूल लगे हुए थे और उस सोफे पर मेरा पति और मेरी जेठानी एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो मेरा जेठ आगे बढ़ा और उसने मेरी जेठानी के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की कि मेरे पति ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा कि तुम तो बड़े भैया के नाम पर कलंक निकले, मेरी ही पत्नी के साथ तुमने ये सब कुछ किया। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। जब जेठ ने कहा कि तो संभाल के रखना था अपनी पत्नी को, ये खुद आई थी मेरे पास और सारा कसूर मेरे पर डालकर बातें करता वहां से निकल गया। मेरी जेठानी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? बुरा लगा ना तुम्हें ये सब देखकर? इसी तरह हमें भी बुरा लगा था, क्योंकि हमें भी ये सब पहले से ही पता था। उस दिन जब हम दोनों घर से बाहर गए थे तो कमरे में कैमरा लगाकर गए थे, ताकि देख सकें तुम लोगों को क्या करते हो, और तुम लोगों की सारी हरकतें सबूत के तौर पर हमारे पास हैं। अब हम इसे इस्तेमाल करके तलाक का मामला करेंगे और तुम लोगों से तलाक लेकर एक दूसरे से शादी करेंगे, क्योंकि तुम लोग हमारे काबिल ही नहीं हो। मैं हैरान रह गई थी, मेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला था। मैं अपने पति से माफ़ी मांगने लगी, पर उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और कहा कि अपने घर चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरी जेठानी ने मेरे जेठ पर तलाक का मामला कर दिया और मेरे पति ने मुझ पर। हम दोनों को तलाक भी हो गया। 6 महीने तक सभी समाज की बातें सुनी थी, फिर सोचा कि अपने जेठ से दूसरी शादी भी कर लूँगी। जब उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं अब अकेले जीवन गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझसे तो फिर कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरे अपने माता पिता भी मुझसे नाराज थे, बस मुझे घर में रखा हुआ था, क्योंकि बाहर नहीं फेंक सकते थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी पत्नी मेरी जिंदगी से चली गई। वो मेरे सारे खर्चे भी उठाती थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो आदमी था जिसने कहा था कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यूं मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरे पति ने मेरी जेठानी से शादी कर ली। अब वो दोनों उस घर में रहते हैं और गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। मेरा पति बहुत खुश है और सुना है कि उनके घर में अब संतान होने वाली है। मेरी जेठानी उससे उम्र में बड़ी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे पूरा दिन अपने घर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे खानदान वाले भी अलग अलग बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही जेठ के साथ चक्कर चलाया। मेरे जेठ को कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि समाज में गलती हमेशा औरत की ही होती है। अब आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं अपने दूल्हे से 5 साल बड़ी थी। वो मुझे अपनी जान कहता था। वो सिर्फ 16 साल का था। उसे नहीं पता था कि दुल्हन के साथ क्या करना होता है।
कहने लगा, मुझे अभी जवान होने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए अप्पी जान मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उसे एक रात में ही जवान कर दिया। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसका हाथ पकड़कर अपने मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। मेरे दादा का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचा ताया की फैमिली उसी घर में रहते थे। सबके अलग अलग पोर्शन थे। दादा तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े ताया का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक ही टेबल पर पूरा खानदान खाना खाता था। मेरे वालिद 4 भाई थे। मैं अपने वालिद की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई। मेरे वालिद तो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे कज़नों की शादी हो चुकी थी और काफ़ी कज़न्स की तो आपस में ही शादियां हुई थीं, लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे ख़ानदान में नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे। दादा के घर का बहुत बड़ा सहन था, वहाँ पर सबकी शादियाँ अरेंज की जाती थीं। अभी भी वो सहन किसी हॉल की तरह बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वजाहत एक खूबसूरत नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और फिर शादी के बाद मुझे बैराने मुल्क जाना था। दुल्हन बनाने के लिए भी मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आई थी। हमारे ताया अब्बा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हों, इसलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। मेरे चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं वजाहत के साथ फ़ोन पर उससे बातें करती थी, इसलिए दिल में वजाहत की जगह बन जाना फितरी सी बात है। कल ही मुझे फ़ोन पर कहने लगा, मोमिना, तुम्हारा उरूसी लिबास मैंने खुद पसंद किया है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी मुझे देखा था, सब ने मेरी बहुत तारीफ की थी। मैं दुल्हन बनी, बाहर स्टेज पर बैठ गई। मेरे सब कज़न मिलकर ये इंतज़ाम किए थे कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा करवाया जाएगा और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। इसलिए दोनों जानिब स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कज़न सहेलियां मुझे वजाहत के नाम पर परेशान कर रही थीं। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के आने का इंतज़ार करने लगे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे वालिद ने मेरे ससुर को कई बार फ़ोन कर डाले, लेकिन वो यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो ही जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे वालिद को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे घरों में वक्त की पाबंदी लाजमी की जाती है। लेकिन इसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर कयामत ही बरपा दी थी। वो कहने लगे कि हम खुद परेशान हैं, न जाने वजाहत कहाँ चला गया है, हमें कब से उसी का इंतज़ार है। हम तो 10 बजे बारात लेकर निकल जाते, लेकिन वजाहत कुछ देर का कहकर गया था, अभी तक नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी बंद है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो और भी ज़्यादा होने लगी। रात का 1 बज गया। लोगों में अब बातें होने लगीं कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल ये था कि सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सब मेरे वालिद से कहने लगे कि ये लोग बहाना बना रहे हैं, लड़के की यहाँ शादी की मर्जी नहीं होगी, वालिदैन ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे, तभी तो घर से भाग गया। अब आपकी बेटी पर तो दाग लग जाएगा। जिस लड़की की बारात ही ना आए, उससे भला कौन शादी करना चाहेगा। अब आपकी बेटी की शादी करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कोई उन्हें बियाने नहीं आता, जिनकी बारात वापस लौट जाए या फिर आए ही ना। उन्हें तो हमारे मुआशरे में मनहूस कहा जाता है। मेरे वालिद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन इस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। अपनी उम्र से भी काफ़ी बड़े लग रहे थे। मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। वहाँ मौजूद मेहमान भी अब वापस जाने लगे थे, जबकि मेरे ताया अब्बा ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। कहने लगे कि ये लड़का
हमारी इज्जत के साथ खेल कर गया है। इसने क्या समझा कि ये हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा। हम खामोशी से देखते रहेंगे। मोमिना की शादी आज ही होगी, आज ही इसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब भी हैरान हुए। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे हुई, क्योंकि मेरे ताया के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताया अब्बा कहने लगे, मोमिना का निकाह कासिम से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जितनी मैं हैरान थी उतना ही कासिम भी हैरान था। वो मेरे वालिद के बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था, जो कि मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे अप्पी जान कहता था। अभी महज 16 साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, ताया अब्बा क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोमिना अप्पी जान मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा, ना ही मेरी निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% सही थी। लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था, हमारे घर में सभी फैसले ताया अब्बा ही करते थे। उन्होंने बुरी तरह से कासिम को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, हमारी इज्जत का मामला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन कासिम ने साफ इनकार कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी। मेरा उसका कोई जोड़ ही नहीं था। कासिम का इनकार करना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने कासिम के मुंह पर मारा, जो कासिम के वालिद थे। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारे बड़े अब्बा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का मामला है। अगर तुमने मजीद कोई बकवास की तो तुम्हारा हशर बिगाड़ कर रख दूंगा। तमाम ख्वातीन खामोश खड़ी थीं। मर्दों के फैसलों के आगे किसी औरत को बोलने का कोई हक न था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर ही नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन चुका था। वजाहत ने तो मुझे जलील ख्वार करके रख दिया था। फोन पर तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। लगता नहीं था कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, यह ज़बरदस्ती उस पर थोपा गया है। जो इस टाइम पर वो भाग गया। मेरे चाचा ने कासिम को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसकी नाक से उसके होंठ के करीब से खून बहने लगा। चेहरे पर नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा, लेकिन मैं जुबान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद से इनकार कर सकती। रोते हुए उसने निकाह किया था। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह थी। वो तो शायद इस तरह कहने का हक भी रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को तो बोलने की इजाज़त न थी। इसलिए मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा जो कि मेरे और मेरे ख़ानदान की इज्जत को सबके सामने तमाशा बनाकर रख दे। मैंने सोचा कि कासिम से निकाह के बाद कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। मेरा क्या है, बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। निकाह के वक्त मौलाना साहब ने कहा कि ये लड़का तो मान ही नहीं रहा, ये ज़बरदस्ती की शादी है। तो मेरे चाचा कहने लगे कि इस बेवकूफ़ को क्या पता है किसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी यह भी 18 का नहीं हुआ है, इसलिए इसका वली होने के नाते मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। मेरा निकाह कासिम से हो चुका था। रोते धोते मेरी रुखसती भी हुई। बदनामी तो हो चुकी थी। बस एक इज्जत की चादर से ढककर मुझे मेरी माँ ने कासिम के साथ रुखसत किया था। जैसे ही मैं कासिम के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची कहने लगी कि बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात के न आने का बेहद दुख और अफसोस है, लेकिन तुम भी सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर न था। वो तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती करके निकाह करवाया है। सारा चेहरा मेरे बच्चे का जख्मी करके रख दिया। चाची के शिकवे जारी थे। मैं भी क्या कह सकती थी। ये शादी कौन सी मेरी पसंद से हुई थी। एक ज़बरदस्ती का बंधन बांधा था। उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गईं। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि ये ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना किसे कहते हैं, शायद ये उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ है। तुम्हें शायद चंद साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं।
मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। बस यही सुनना रह गया था मेरे नसीब में। कुछ ही देर बाद कासिम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। चंद दिन पहले मुझसे कह रहा था, अप्पी जान बताएं ना, आपके निकाह पर कौन सा जोड़ा पहनूं। उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन डील डॉल अच्छा था। कद में ऊंचा था, सेहत भी काबिले रक्श थी। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो कासिम, छोड़ो मेरा हाथ। पता है ना मैं मायूं बैठी हूँ। अगर अम्मी और चाची को पता चल गया तो वो मुझ पर खफा हो जाएंगी। कहते हैं मायूं वाली लड़की को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं, आप ही बताओ ना अप्पी जान, मुझे किस फंक्शन पर क्या क्या पहनना होगा। तुम्हें तो पता है ना, तुम जो बताती हो मैं वही पहनता हूँ। कासिम की मेरे छोटे भाई रफीक से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब भी मैं रफीक की शॉपिंग के लिए जाती, कासिम भी मेरे साथ जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कभी भी जाना होता तो मुझसे पूछता, और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। अपने कपड़े उसने बेड पर फैलाए हुए थे। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना आपी जान, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? ऑफ वाइट 3 पीस सूट अच्छा लगेगा या फिर ब्लैक कलर का पहनूं? मैंने कहा, तुम दुल्हन के भाई हो तो ऑफ वाइट पहनना चाहिए। फिर रफीक भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ठीक है। फिर इस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना, दूल्हे से ज्यादा स्मार्ट लगूंगा मैं। अपनी फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा, अपना मुंह धो लो, दूल्हे से ज्यादा अच्छा लगूंगा। मैं मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारते वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। कासिम कमरे में आते ही मुझसे चिल्लाकर बात करने लगा। कहने लगा, अप्पी जान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपचाप निकाह कर लोगी। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी? कासिम, हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे इनकार करने पर क्या मिला तुम्हें? शक्ल देखो अपनी आईने में, जो हाल तुम्हारा हुआ है वही मेरा भी होता, और उसके बावजूद भी फिर भी ताया अब्बा हमारा निकाह करवा देते, जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे ताया अब्बा मर जाएं। ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, तुम्हारा दूल्हा नहीं पहुंचा और मेरा निकाह पकड़वाकर जबरदस्ती करवा दिया गया। क्या यूं भी जबरदस्ती रिश्ते किए जाते हैं? मेरी कोई उम्र है क्या शादी की? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है। आप ही जान कहता हूँ तुम्हें, ताया अब्बा को शर्म नहीं आई कि वो ये क्या कर रहे हैं? पकड़कर मुझे अपनी बहन का शौहर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसने ठीक कही थी। मैंने कभी रफीक में और कासिम में कभी फर्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था, उसे डांटा करती थी मैं, कान तक उसके खींच लेती थी जब वो टेस्ट याद नहीं करता था। और अब ताया अब्बा के फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। दूसरी जानिब अब मेरे दिमाग में भी अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर वजाहत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। यही सोच रही थी जब कासिम की आवाज पर चौंकी। कासिम ने कहा, ये तकिया पकड़ें और जाकर सोफे पर सो जाएं। बड़ी कड़ी सजा दी थी मुझे वजाहत ने। अगले रोज रात को ताया अब्बा ने कासिम को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे बाद वो कमरे से वापस आया, बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा था ताया अब्बा ने तुमसे, जो इतने गुस्से में हो? कहने लगा, साला बुढ़ा सटिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकता जो ताया मंसूर अली चाहता है। कासिम इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बा के बारे में बात करते हुए बड़े छोटे का लिहाज ही भूल गया। मैंने कहा, कासिम इधर बैठो। मैंने उसका बाजू पकड़ा, सोफे पर बिठा दिया, पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद वो कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, अब बताओ क्या बात है? क्या कहा तुमसे ताया अब्बा ने? वो कहने लगा कि कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है।
اس لیے اپنا ولیمہ پکا کرنے کے بارے میں سوچو۔ اس کی بات سن کر تو مجھے بھی تایا ابا کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ قاسم کی حالت ایسی تھی کہ ابھی رو دے گا۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نبھا بھی نہیں سکتا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ آپ ہی سمجھائیں نا ان سب کو، ان سب کی باتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ 16 سال کا لڑکا رشتے کی نوعیت کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور ہمارے گھر کے بزرگ اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ میں نے اس سے کہا تم تایا ابا سے کچھ مت کہنا، سب کے سامنے ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے، بس کمرے میں ہم اچھے دوست کی طرح رہیں گے جیسے پہلے رہا کرتے تھے۔ وہ میری بات سن کر مان گیا، لیکن جب چند دن کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوا تو تایا ابا نے ایک نیا حکم سنا دیا۔ کہنے لگے کہ قاسم آج کے بعد کالج نہیں جائے گا۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، میں قاسم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کیوں؟ تایا ابا میرے پیپر ہونے میں صرف کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم شادی شدہ ہو، تمہارے سر پر تمہاری بیوی کی ذمہ داری آ چکی ہے، اس لیے آج سے تم ہمارے ساتھ فیکٹری جاؤ گے، تمام ورکر سے کام کرواؤ گے، باقی کے معاملات بھی تمہیں فیکٹری میں جا کر بتا دیے جائیں گے۔ پہلی بار میں نے تایا ابا سے شکوہ کیا تھا۔ میں نے کہا تایا ابا یہ زیادتی ہوگی، آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا وہ ہم قبول کر چکے ہیں، لیکن پلیز قاسم کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے دیں۔ میری بات سن کر تایا ابا مجھ پر بھڑکنے لگے۔ کہنے لگے ہمارے یہاں لڑکیوں کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کو مشورہ دیں، اسے پڑھنا ہے تو پرائیویٹ پڑھ لے، لیکن آج سے یہ فیکٹری جائے گا۔ قاسم کالج کے بجائے فیکٹری جانے لگا۔ مجھے قاسم کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس بیچارے کی ساری آزادی ختم کر دی گئی تھی۔ رفیق بھی اسی کی عمر کا تھا، کالج جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن قاسم کی زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ فیکٹری سے وہ سب مردوں کے ساتھ رات کو واپس گھر لوٹتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلا جاتا، اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ میں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں جاتی تو سارے بیڈ پر کتابیں بکھیرے بیٹھا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگتا تم جلدی کمرے میں نہیں آ سکتی؟ اب جلدی سے مجھے یہ سمجھاؤ نا آپی جان، یہ سوال کیسے ہوگا؟ اس لیے رات کو میں اسے پڑھانے لگتی تھی تاکہ وہ پیپر اچھے سے دے سکے۔ جن دنوں قاسم کے پیپر تھے، بڑے چاچا کے کہنے پر قاسم کو فیکٹری سے بس اتنی سی ہی چھٹی ملتی تھی کہ وہ جا کر پیپر دے سکے۔ ان دنوں قاسم آدھی آدھی رات تک جاگ کر پڑھائی کرتا تھا، اور مجھے بھی اس کی تیاری کروانے کے لیے رات رات بھر جاگنا پڑتا تھا۔ ایک بار وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر کتاب پکڑے یاد کر رہا تھا۔ مجھے بھی شدید نیند آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ آخری سوال بھی وہ یاد کر کے مجھے سنا دے گا تو میں بھی جا کر صوفے پر لیٹ جاؤں گی، لیکن شاید قاسم بھی نیند کی شدت کی وجہ سے اوبنے لگا، اس لیے بے اختیاری میں میری گود پر گر گیا اور وہیں پر سر رکھ کے سو گیا۔ میں آنکھیں موندے اس انتظار میں تھی کہ اس کی تیاری مکمل کروا کر سو جاؤں گی۔ قاسم کی اس بے اختیاری حرکت پر بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ نیند کی شدت کی وجہ سے میری گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ میں نے اسے پکارا بھی، لیکن وہ شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پہلی بار میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن کیونکہ اس کا ڈین ڈول کافی اچھا تھا، اس لیے میرے ہلانے جلانے پر ذرا بھی نہیں کھسکا۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا۔ میں بیڈ کے سرانے پر ٹیکس لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رات گہری نیند میں مجھے بھی ہوش نہیں رہا۔ صبح جب الارم پر میری آنکھ کھلی تو میں قاسم کے بے حد قریب تھی۔ وہ میرے ہی تکیے پر سر رکھے ہوئے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا بازو میرے اوپر تھا، اس کی سانسوں کی گرمی بھی میں سن سکتی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی، شاید نیند میں میرا جونڑا کھل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ مجھے خود پر بھی غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس کے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھانے کی؟ شکر ہے اس کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ تو شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے۔ میں نے قاسم کو جگایا، وہ تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ کہنے لگا میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ آپی جان۔
ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर होठों पर लगाए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए, लेकिन मुझे ये लगने लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। न चाहते हुए भी मैं कासिम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना और लाउबाली थी। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। लेकिन जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अप्पी जान। वो मेरे गले से लगकर ये सब कह रहा था। मैं फौरन उससे पीछे हटी थी। कुछ दिन बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका इरादा बीबीए करने का था। फैक्ट्री पर भी वो भरपूर तवज्जो दे रहा था, इसलिए ताया अब्बा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे वो लाकर मेरे हाथ में रख देता था। कहता था, तुम संभालो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना। ताया अब्बा ने उसके रिजल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता मुझसे पूछता कि आज क्या पहनकर जाऊं, जिससे सारी लड़कियां मुझे देखें। नया नया यूनिवर्सिटी जाने लगा था, इसलिए उसकी बातें बदलने लगी थीं। मैं मुस्कुराकर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर देती थी। कहती, ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें ही देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक करने पर वो हंसने लगता। पिछले चंद महीनों से कासिम के चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आ रही थी। बहुत खुश खुश रहने लगा था। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल बुझ गया, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए कोई भी जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते को तकाजा दें। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। मुझसे पूछने लगा, तुम बताओ कैसी है। इस बार मैं मुस्कुरा नहीं सकी थी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, आपी जान, तुम्हें क्या लगता है ताया अब्बा मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे? मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उसके इंस्टॉलमेंट पर एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगा। फिर तुम इस लड़की से शादी करके उसे उस फ्लैट में रख लेना। कासिम को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं राबेल से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने राबेल के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते और किस हैसियत से कासिम? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया था। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं राबेल को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता राबेल से तय कर दो तो यकीन मानो एक बार राबेल से शादी होने के बाद मैं अम्मी अब्बू को मना लूँगा। मैं राबेल के घर कासिम की कज़िन की हैसियत से गई, रिश्ता पक्का करके आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि कासिम राबेल की शादी के बाद अलग रखेगा तो उन्हें एतराज़ न था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा, मेरे सर में दर्द था। औरत के लिए सौतन लफ्ज़ शायद हमेशा ही अज़ियत का बाइस बनता है। मैं भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो कासिम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं कासिम के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी थी जब अचानक से एक व्हील चेयर मेरे सामने आकर रुकी। ये शायद मैं उस व्हील चेयर के सामने अचानक से आ गई थी। वो वार्ड बॉय मुझसे माजरत करने की कोशिश करने लगा, जो व्हील चेयर चला रहा था। शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस मरीज पर पड़ी, मेरे होश उड़कर रह गए। व्हील चेयर पर बैठा शख्स वजाहत था, जो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मोमिना तुम? मैंने कहा, मर गई मोमिना, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था वजाहत, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मंगनी क्यों की थी? मैं रोने लगी। वो कहने लगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो पिछले 4 सालों से कोमा में था। बस कुछ महीने पहले ही होश में आया हूँ।
जब होश आया तो पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे मेरे चचाजाद भाई से करवा दी। मेरे साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। कासिम को देखकर वो कहने लगा, मोमिना मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। खुदा के लिए छोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कासिम का हाथ पकड़कर तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। पूरा रास्ता मैं रोती रही। कासिम एकटक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। तो और क्या करूँ? वो कहने लगा, शादी नहीं करना चाहती वजाहत से? क्या उससे अब भी मोहब्बत नहीं करती हो? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका है उसी को निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया ही क्या है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए कासिम। तुम जैसा चाहो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊंगा। फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके वजाहत से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब वजाहत कहीं भी नहीं है। बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैं जी लूँगी तुम्हारे नाम पर सारी ज़िंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जियोगी? सिर्फ मेरे नाम पर। मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाज़ा नहीं है कासिम, वो जी लेती है। घर भी आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज़ हो चुकी थी, क्योंकि फितरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कासिम बहुत जल्द राबेल से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाता। रात को जब कासिम कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठा लिया ताकि सोफे पर जाकर सो सकूं। कहने लगा, मोमिना मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से मोमिना सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल मैं उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात फ़ौरन से क्यों मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो। पहले तो मुझे डांट भी देती थी, कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी हर बात से ज़रा भी इख्तलाफात नहीं करती। क्यों? मैंने कहा कि रिश्ते की नौइयत जो बदल गई है, निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने राबेल से शादी से इनकार कर दिया है। मैंने हाथ उसके सर पर रोका था। मैंने कहा, क्यों कासिम? कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाए। शायद मैं भी उससे इतनी मोहब्बत नहीं करता। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने का। वो कहने लगा, और तुम्हें? तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो मोमिना। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और उठकर बैठ गया। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मकाम पर हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। ताया अब्बा के गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था। फिर मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी को सजा बनाकर रख दूँ? इतना भी बेहिस नहीं हूँ मैं। ये कहकर उसने मेरे हाथों को अपने होंठों से लगाया था। मेरा दिल एक बारगी से धड़का था। वो कहने लगा, मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने की भी हकदार हो। ये कहकर उसने मेरे बालों को एक क्लेचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी महवियत से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो मोमिना। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ मुतासिर करता है, लेकिन उसकी वफा उसे खरीद लेती है। तुम्हारी वफा ने मुझे खरीद लिया। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाज़ा कासिम को शायद तब हुआ था। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई औरत की वफा मर्द को खरीद लेती है? मर्द औरत की वफा से यूं ही पिघल जाता है जैसे कासिम? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।